Dear student, I think these days you are all preparing for CBSE board exams, and there you need to face practical viva. In the practical viva, you have not only been expected to have the thing regarding the experiments, but also you need to know some viva related to the activities. ये एक्टिविटी बेस्ड वाइवा क्या क्या हो सकता है, किस टाइप के आपको पूछ सकते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत एक्टिविटी देख कर। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मेरे पास कुछ फंडामेंटल्स कुछ इक्विपमेंट छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स रखे हो, तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ कुड वी आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? ओके, let us just check. Suppose we are having this type of thing. Here they are all been marked, but suppose they are not been marked, but ये ऐसे अलग अलग मार्क फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको अलग से एक रैंडम वे में दे रखा है, तब क्या करेंगे? Suppose I am having this thing, this a diode. This one is your diode valve. What type of diode? This is your LED, light emitting diode. Okay. Similarly, when we call this thing, this is your capacitor. This is your capacitor. ठीक है, तो कैपेसिटर इस टाइप का देखने को होता है, आप आप देखकर पता लगा सकते हैं। द कैपेसिटर कुड ऑल्सो बी लाइक दिस, ये पेपर कोट कैपेसिटर होता है, और माइका वाला कैपेसिटर जो अंदर से भरा रहता है माइका, दे आर लाइक दिस दैट आई एम ऑल्सो शोइंग। This is mica type capacitor, you can see very easily. Okay, some very small things they are written, their readings are also sometimes mentioned. This is of this much of microfarad or picofarad, like this. Okay, and this may also be like some microfarad or picofarad. There are different types of capacitor, but they are capacitor. This is no doubt, this is a battery। ये जो दिख रहा है आपको बैटरी है, बैटरी और जस्ट सेल, सिंपल सेल ऑफ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट लिखा रहता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, यहाँ पर दिखा है पॉजिटिव, एंड दूसरे एंड में लिखा हुआ नेगेटिव, नेगेटिव। therefore and they can be very easily connected to any circuit by means of such connector। ये कनेक्टर ऊपर लगा सकते हैं, जैसे जिससे भी जोड़ दे तो इट कैन गिव द लाइट। ओके, now we are having another type of say LED that I am also showing। ये LED दे रखा है, ये LED भी इस टाइप का आपको देख सकते हैं, ये एक अलग टाइप का LED है। ठीक है, ये एक टाइप का LED है जो रंगीन है, हो सकता है जो लाइट मिलेगा वो भी आपको कलरफुल मिलेगा, ये हो सकता है आपको कलरलेस यानी वाइट लाइट आपको मिलेगा। ठीक, ओके, तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए। कुछ रेजिस्टेंस भी इस तरीके से हो सकते हैं। देयर मे बी मेनी रेजिस्टेंसेस लाइक दिस, वी कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व दैट how these different resistances are given, and they can be explained on the basis of color code। Okay, and suppose I am taking out any of the resistance, and I will just explain that how it can be explained, how the value of that resistance can be explained। Let us check। Let us check this resistance। You can see there are three types। Okay, at the extreme end it is the silver color, we have to ignore that one, and rather we will take these three colors are red, orange, and red, orange, and say brown। These three colors are there, just opposite to the golden color। इस कोने में गोल्डन कलर है, एंड उसको अपोजिट साइड में तीन स्ट्राइप्स है, ए बी सी। द ए कलर इज योर रेड, you can just observe A is red,
and B color is your orange, and C color is your brown. What is the formula for color code? BB Royal, Great Britain, very good, white. This is the general formula. BB Royal, B for black. Black means 0. And next B is your brown. Brown is 1. यहाँ पर brown है. देखो brown last वाले में है brown. ठीक. अच्छा उसके बाद रॉय, ROY. रॉय means red. Red times to कितना हो जाएगा? BB रॉय. ओके तो R कितना हो जाएगा? पहला रेड का मतलब कितना हो जाएगा? 2. ओके O का मतलब हो जाएगा ऑरेंज. O. ओके ऑरेंज का मतलब हो जाएगा 3. एंड देन ब्राउन. ब्राउन का कितना मतलब हो जाएगा? ब्राउन का मतलब हो जाएगा 1. तो अगर मैं इन तीन को अगर सीरियल वाइज ऑर्डर में देखें तो ए बी इंटू 10⁻C ये होता है फॉर्मूला. They are given in the YouTube channel, then my channel itself in the chapter of electric current electricity. There you can get it. Okay. But let us take when we have three colors and they are opposite to the extreme colors. The first color is your red. Red means it is how much? Red is BB Roy. That is 2. Red means 2. एंड ओ इज योर ऑरेंज. तो ऑरेंज का क्या कलर है? ऑरेंज का मतलब हो जाएगा 3. तो 23 तो ऐसे ही हो गया. अच्छा उसके बाद है ब्राउन. ब्राउन का मतलब हो जाएगा 10⁻1 क्योंकि बी रॉय में बी दूसरा वाला बी होता है ब्राउन, पहला वाला बी होता है ब्लैक. तो 10⁻1 23 इंटू 10⁻1 मतलब 220 230. तो 230 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया. अगर रेजिस्टेंस अगर आपको इस टाइप के कई रेजिस्टेंस भी रखा हुआ है आपको इस टाइप के सिलेक्शन टेबल पे, तो यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई दैट which one is resistance, which one is capacitance, which one is this. You can just observe that suppose I am having all these things, they are given in opposite way like this, and suppose here you have to identify the which one is your resistance. Just see closely which one is your resistance. This one is resistance because their color stripes are there. Color stripes are there, very easily you can see. Okay, and these two things are capacitor. ध्यान रखना कैपेसिटर में जो दो आपके वो होते तार होते और दो तार को आप चार्ज कर सकते, चार्ज करके इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं. मोस्टली हम लोग कैपेसिटर के जो पॉइंट्स होते हैं इनके चार्ज इनके तार के साइज देखिए इक्वल होता है. दिख रहा है आपको? कैन यू सी द साइजेस ऑफ बोथ द वायर्स दे आर ऑलमोस्ट इक्वल. जो दो लेग दिख रहा है इनका इक्वल लगभग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पर चक्कर नहीं होता. लेकिन जब हम डायोड देखते हैं then we always have one positive, other negative. One is positive, other is negative. Naturally ये number है, so this is positive and this one is slightly bigger. This one is slightly bigger. Can you see? This one is slightly bigger and therefore this is positive, and this one is slightly lower, therefore this is negative. Can you identify this? Which one is? I am again observing this. You can see that some wire is longer, other one is shorter. The longer wire is positive and shorter one is negative. ये हो जाएगा आपका एलईडी जंक्शन का, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड. सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ये दूसरे टाइप का एलईडी है. यहाँ पर भी आपको देख सकता है कि एक छोटा और एक बड़ा है, इसमें भी वायर है. और ये देख सकते हैं ये एक एलईडी है. ये आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए, टेबल में दे दिया है, एग्जामिनर ने दे दिया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई देन विच वन इज दिस. आप कह सकते हैं ये धारी वाला जो कलर वाला जो स्ट्राइप्स वाला है ये रेजिस्टेंस होता है जिसमें दो तार है दोनों तरफ निकला हुआ, बीच में प्लास्टिक का ऐसे कवर वाला रेजिस्टेंस. ये वाला होगा कैपेसिटर क्योंकि इसमें कैप लगा था, मोस्टली माइक्रो फैरेड में सामने दिखता है. और ये भी छोटे छोटे गोल गोल वाला ये भी आपका कैपेसिटर. ठीक है, और ये भी एक टाइप का एलईडी है. इसी अगर एलडीआर भी होता है, आप देख सकते हैं कि समवेयर वी इवन हैव एलडीआर, लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस. यू कैन सी दिस वन. ओके, दिस वन इज योर लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस एलडीआर. तो एलडीआर का हम लोग फंक्शन ज़्यादा यूज नहीं करते इसलिए उसको जानने की जरूरत नहीं है. एक तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया.
अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अब हम लोग के ये दिमाग में आ सकता है कि ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डायोड वर्केबल है, कौन सा वर्केबल नहीं है। हाउ वी आइडेंटिफाई दिस? फॉर दैट वी डेफिनेटली यूज वन मल्टीमीटर। ये आपको दिख रहा है, ये मल्टीमीटर है। इसमें देखिए वोल्टेज, ये जैसे प्लेन और डॉटेड वाला है, ये डीसी है, और ये कर्व बना हुआ है, ये एसी वोल्टेज नापने के लिए है। और दिस इज सिंपली करंट मेजरमेंट के लिए, दिस इज योर रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, दिस इज रेजिस्टेंस। ओके, अब हम लोग इसको जस्ट टू सी whether some electrical devices is workable or not, can it be functionable or not, हम लोग सबसे पहले क्या रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ से घुमा कर ये रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मान लें यहाँ पर देखिए 2000 ओम को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, दिख रहा है आपको, ये एरो हैंड देखिए 2000 में यहाँ पर दिया है। और इसके ऊपर अगर ये हो जाएगा 20,000 मतलब 20K मतलब 20,000 हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव सेट इट एट 2000 ओम। ये वन जो लिखा है उससे उसमें मत जाइए आप। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें दो लीड लगे होते हैं, देखिए एक पॉजिटिव लाल वाला पॉजिटिव और नीचे वाले जो अर्थिंग दिख रहा है इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब यहाँ इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंड्स है, ये है दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंड। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, बड़े वाले को लाल से जोड़ा। इसमें हम लोग बार बार लगा कर देखते हैं कि अगर फंक्शनेबल है तो इट कैन वर्क, एक फंक्शनेबल नहीं है तो इट कैन नॉट वर्क, इट कैन नॉट गिव एनी रीडिंग, it is not giving you any reading. Okay, then we see another one. You can see that since there is already some battery, तो इसमें ऑटोमेटिकली देखिए लाइट एक हल्का जलने लगता है। कैन यू सी that whenever I am just touching this, it can give a little glow। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग जब देख लेते हैं इसको, now you can see, you can very easily observe, uh, camera must be put over here। I don't know how it is possible to show you there।
if it is not easily giving you the reading, then it is always advisable to change the range, and we have to ensure that it must be taken in proper form. Yes, it is giving. Okay. Now, suppose we are not absolutely satisfied with the thing, then let us see if it is possible to join this with battery. If it gives some light, then also we can justify that this is functionable or not. If it is not glowing, this is not giving you light. If this one is not giving you light, that means we can say that this might not be correct. This might not be correct because it is not giving you any light. Let us check with the other one. Suppose I am directly taking this, and I am taking this one. Now it is giving you light. You can see it is giving you light. Then this is functionable. Okay, let us check its resistance. If it is workable, then it can also be shown by the multimeter. It is giving you some slight reading of multimeter. तो मल्टीमीटर से क्या देखते हैं हम लोग, देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर यूज करते हैं, तो कुछ भी रेजिस्टेंस आ जाए सर्किट में तो आप ये समझ लेंगे कि इट इज वर्किंग. ओके. कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमेशा याद रखिए कि रेजिस्टेंस को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और हम लोग जैसे कोई भी चीज़ अगर ह्यूमन बॉडी को भी देखना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे कहीं पर भी हम लोग कुछ भी सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं तो ये हमारा जो है रेजिस्टेंस को बता देता है. इस चीज़ के हिसाब से कंडक्टिविटी कोई चीज़ में भी जैसे ये यूज़ करते हैं हम लोग, इसका भी कंडक्टिविटी बता देता है. इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके. नाउ ये तो एक जनरल आइडिया है कि कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाउ वी आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स. तो आपको अलग अलग आइटम दे दिया, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे दिए, उसको हम चेक कर सकते हैं. एक और होता है जैसे आपको कोई ग्लास स्लैब से अगर आपको वो करना होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट खींचना है. सपोज you have to you have to do this activity of drawing the lateral displacement of a glass. Okay. ग्लास स्लैब. तो उस समय कैसे करते हैं हम लोग, एक सिंपली एक ग्लास स्लैब लेते हैं. दिस इज ग्लास स्लैब ले लिया, और घर में कोई भी कार्डबोर्ड या आपके जो ड्राइंग बोर्ड कुछ भी आपने ले लिया, उसके बाद घर के चार आपने क्लिप लगा दिए पेपर के साथ, एंड देन यू पुट दिस स्लैब ऑन दिस. इसका अपने आउटलाइन खींच लेंगे. यू हैव टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ दिस. सपोज आई एम ड्राइंग द आउटलाइन. आउटलाइन हमने खींच लिया. ठीक है, आपको दिख गया होगा आउटलाइन कैसे हमने बनाया. देखिए. ठीक है. अब आउटलाइन के बाद आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, एक स्केल से कहीं पर भी एक इंसिडेंट देख लेंगे. एंड वी कैन सी दैट इमेज थ्रू द प्रिज्म.
you can just observe that I have in fact drawn a straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, और खींचने के बाद हम लोग उसको इस साइड से देखेंगे, जहाँ पर बिल्कुल सीधे एक स्ट्रेट लाइन और खींच सकते हैं हम, तो वहाँ पर उसी के सीध में एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हम फ्रॉम अदर साइड। एक और हमने स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन खींच तो दिया, बट ये यू कैन जस्ट ऑब्जर्व that I am having, this is an incident ray and this one as emergent ray. This line is very fainted, okay, and I will just make it darker. Now what will happen, I will just make them join. आप देखिए इस टाइप के आ गया, एक इंसिडेंट रे आया, एक बीच में रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे, तीन अलग अलग लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इफ आई जस्ट produce the incident ray, then we are having almost two parallel rays, एक तो इमर्जेंट रे है और एक इंसिडेंट रे को ही आगे प्रोड्यूस किया है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस टाइप का लेटरल डिस्प्लेसमेंट का भी एक एक्टिविटी हो गया, कि कैसे ये सिलेक्ट करेंगे कि कोई वर्केबल है या नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक एलईडी इज वर्केबल और नॉट, दैट वी हैव सीन। आइदर वी यूज द मल्टीमीटर और वी यूज अ बैटरी। बैटरी से लाइट जल जाता है तो वर्केबल है, बैटरी से नहीं लाइट जलता है तो वो वर्केबल नहीं है, ठीक है। और मल्टीमीटर से भी देख लेते हैं कि अगर मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू दिख रहा है तो मल्टीमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ उसके बाद एक पॉइंट टच करते समय आ जाए तो उस समय समझ लीजिए आपका ये दिख रहा है। जैसे हमने अभी अभी आप कैमरे के सामने लाते लाते वो 1 0 हो गया, नहीं दिख रहा था, लेकिन बट यहाँ पर जब नीचे था ऐसा था तो दैट वाज शोइंग, दैट मीन्स anyhow we have to identify this when we practically have this in lab, that आप बड़े आराम से इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। सिंपली काम क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस में सिलेक्ट कर लेना है, 2000 या 20K में सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव को आप चेक करेंगे। अगर उसमें कुछ वैल्यू आ जाए रेजिस्टेंस बॉक्स में, इसमें रीडिंग में, देन ऑब्वियसली डिस्प्ले में अगर कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब वो वर्केबल है, तो उसको बैटरी से देंगे, जोड़ेंगे तो लाइट देगा। और अगर बैटरी मिल जाए तो बैटरी से चेक कर लेते, तो इस टाइप से चेक कर लेंगे। आइडेंटिफाई करना है क्या कौन कौन से क्या है। दिस इज योर एलईडी, कलरलेस एलईडी, दिस इज योर कैपेसिटर, okay, this is another type of capacitor, ठीक है। ये है आपका रेजिस्टेंस, जिसको कि आप रेजिस्टेंस कोड से निकाल सकते हो, कलर कोड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और दिस इज योर एलईडी विद कलर लाइट। तो इस टाइप के आपका ये भी वर्क हो गया। इन दैट वे आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू टू हैव सम रेगुलर प्रैक्टिस session for this viva of your CBSE forthcoming board exam, practical exam. With that, we have completed today's lecture. Thank you.